थैंक यू सो मच एडवोकेट अनुराधा दीक्षित जी। आप पॉडकास्ट में आने के लिए अग्री कर गए। सो बिफोर वी स्टार्ट, कैन यू गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू लाइनर कि आप का एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है और आप किन किन कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। नमस्कार, मैं अनुराधा दीक्षित एडवोकेट. I have been in practice since 1985. That's been a very long time. I started my practice from Delhi High Court. Now I am an independent practice with lots of juniors. My area of practice basically is matrimonial laws first, commercial act, civil suit, civil litigation. It's vast, excepting taxation and rape cases and murder cases. I take everything that comes my way. But matrimonial is my specialization. I have matters not only in Delhi but pan India. I am traveling to Ranchi, Bhubaneswar, Mumbai for matrimonial cases, even in the district courts and high court. ओके So, मैम, तो योर एक्सपीरियंस इज वास्ट एंड दिस वुड सर्टेनली बी हेल्पफुल फॉर फादर्स लाइक मी। sure. और मैंने कुछ टाइम से रील डालना शुरू करा है ऑनलाइन, शेयरिंग माई स्टोरी विद एवरीबडी एंड सो मेनी फादर्स इन इंडिया, इन फिनलैंड, यूके, यूएस, कनाडा। मेरी उनसे बात भी हुई है, डायरेक्ट मैसेजेस भी हुए हैं। पीपल आर फेसिंग सिमिलर इश्यूज एंड कहीं ना कहीं एक फीलिंग है दैट फादर्स लाइक मी, क्योंकि सब सफर कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा केस चलता है, तो पीपल आर लूजिंग ट्रस्ट इन कोर्ट। सम पीपल से दैट द कोर्ट्स आर बायस्ड टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर। सो मैम, आप थोड़ा सा इसके ऊपर लाइट डालेंगे शॉर्ट में कि क्या हमारा Uh, परसेप्शन ठीक है या कुछ गलत है हमारी थिंकिंग। देखिए, we are on two opposite sides. You are the client, there is a judge. You are desperate to get a relief, there's an anxiety, there's a stress, because any matrimonial dispute gives that. But on the other side, there is a judge. So, in my wisdom, I have seen both the sides. Now, these judges are burdened with too many cases. In a day, there are 40 cases. Like, if you go to Gurgaon court, I'll just give you an example. There is not a place to stand inside the court. You are in those ट्रू। corridors, like वो भेड़ बकरियों की तरह आप खड़े रहते हो, पसीने अग्री। आ रहे होते हैं, और वो जज भी उन्हीं सर्कमस्टांसेस में काम कर रहे होते हैं. So they have to give relief in a balanced manner. तो यहाँ पे ये एक अगर हम परसेप्शन लेके चले कि हम गए हैं और हमें रिलीफ तुरंत मिल जाएगा, नहीं. There are ओके। certain things I think I need to guide you about litigation, how to embark upon a litigation. हर चीज, ऑर्डर्स, ये सब सेकेंडरी आती है. पहले आपका माइंडसेट. अगर आप रिलैक्स्ड माइंडसेट से जाओगे, कुछ एक चीजें एक्सेप्ट करके जाओगे, then you will get a better relief. You will come back from the court not stressed out, but waiting for the next stage. So, ओके। if we are now just talking about child custody, right? There यस। is a dispute, your wife. Now, I'm talking about the perception of the fathers here, right? I am handling at present 4 to 5 matters where I am from the side of the father. So the stage first comes that your child is taken away from you. You were very attached to your child. You're seeing your child every day. You were participating in their life, no matter what the age is. Suddenly the child goes and the desperation, depression sets in. Then you go to the court. Now, in the court, unless and until the other party is present, you will not get the relief. But in some cases, judges are nice. Like I had filed a case in that I filed an application. But no, there the other side was present because it was a divorce petition. But the judge was good enough. This is Saket Court. ओके। He gave a relief to me without the other party filing an application. He says, हाँ आप बताओ क्या करना है, ये मेंटेनेंस दे रहे हैं बच्चे को, हाँ जी दे रहे हैं, फिर आपको मिलाने में क्या प्रॉब्लम है. बहुत टग ऑफ वॉर हुई. जज वॉज हिटिंग हिज वॉल head against the wall, but then he stood his ground. So the father got to meet the child. उसमें भी what happens is that there's so much of acrimony between the parties that the wife takes it as a personal defeat. तो वाइफ हुई, उसके फैमिली हुई, क्योंकि जी शादियों में तो मिलनी होती है और यहाँ पे होता है वॉर, तो पूरी फैमिली वर्सेस हो जाती है. सो दे डिड एवरीथिंग अंडर देयर पावर टू इंश्योर कि ये ना. फिर आई हैड टू अगेन टेल द जज दैट आई डोंट वांट टू गो इनटू मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. टाइम कम दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं. तो जज ने फिर उसको बोला कि अगर आप नहीं मानोगे मैं कोर्ट में बुला लूंगा,
और आप बच्चे को दोगे, उसने एरिया ऑफ विजिटेशन पहले 1 किलोमीटर का रेडियस था, फिर उसने उसको बढ़ा दिया। तो ओके। अगर हम तो कहें जब इंस्टीट्यूशन आप, घर पे नहीं मिलती, फादर को अपने घर पे मिल बच्चे को नहीं जाती ले है सर, मिल जाती है। मैंने दिलवाई है मिलने के लिए, घर लाने के लिए, आउटस्टेशन शादी ले जाने के लिए। अब थर्ड स्टेप मेरा होगा कि समर वेकेशन, लास्ट ईयर वी हैड गॉट इट फॉर वीकेंड्स, ओके। क्योंकि आई हैड प्रॉमिस्ड माय क्लाइंट्स फादर दैट उन्होंने बच्चे को नहीं मिला था, रात को भी नहीं रुका था एक केस में। आई प्रॉमिस हाँ। आपका बच्चा आपके घर आके रुकेगा। But these हम्म। are one step at a time, baby steps, then we go to the next, then we go to the next step. गॉट तो इट आपको मैम। पहले, हाउ इम्पोर्टेंट इज द रोल ऑफ ए लॉयर? या कितना पैसा खर्चना चाहिए, मतलब एज्यूमिंग कि एक अच्छे लॉयर ज्यादा फीस लेते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इज द रोल ऑफ ए लॉयर टू गेट द विजिटेशन, राइट विजिटेशन एंड द कस्टडी फास्ट? see, for any lawyer now, as you see in any profession, there are all kind of people, right? Now, a youngster who has entered the profession will obviously want a case. He will want a case to prolong, be, stretched, पॉसिबल। क्योंकि आपके पॉसिबल, पास यस। उतने काम नहीं होता है, आप यंग होते हो, वो चलता है। उसके बाद आता है एक एस्टैब्लिश लॉ फर्म हो, वहां पे उनका एक्सपीरियंस है, उनका सब कुछ है। अ लॉयर्स रोल इज कि आपको वहां पे लॉ नहीं मालूम, आपको जज को कितना देना है। सी, नाउ व्हेन ही इज गॉट 40 केसेस लिस्टेड, आपके पास बकेट भर के आपकी नॉलेज है और फैक्ट्स हैं, उसके पास टाइम है सिर्फ आधा मग सुनने का फैक्ट्स। हम्म। वो कौन सा रिलेवेंट पोर्शन है जो आप उसको बताओगे जिससे आपको रिलीफ मिल जाए? ओके। That is the role of the lawyer, गॉट to इट। put your point across to the this thing. Now, where fees comes, हम्म। I personally speaking for myself, I don't know what the others are charging. It has always been, call it a lazy lawyer, whatever. I take few cases ओके। because if you have few cases, you can focus on that case again and again, and हम्म। you get good results. ठीक है? But if हम्म। you take, अगर मैं less paying 10 cases ले लूं, तो उन हम्म। 10 में उतना फोकस आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको उसको समझना पड़ेगा, आपको क्लाइंट की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, आपको क्लाइंट से डिस्कस करना पड़ेगा। और जब आप लोग कोर्ट आते हो तो लॉयर का कोई टाइम नहीं होता। हम्म। मैं तो सिर्फ कहती हूँ भाई 10 बजे से रात के और सुबह 5 बजे, सो दे आर मैसेजेस फ्लडेड। सुबह उठती हूँ, मैसेजेस होते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी होती है बच्चे को लेके, उसको लेके, तो वो सारी चीजें सेटिस्फाई करनी। तो उन सब चीजों के लिए इट इज बेटर दैट you get the right lawyer. And second thing, these हम्म। matrimonial cases are a boon for any lawyer. क्योंकि आप लोग आते हो मेरे पास आओगे, मैं आपको एडवाइस करूंगी, देखो आपको गुस्सा होता है कोर्ट में देख लेंगे। जब आप वहां पे आते हो तो आपके एक केस है 4 केसेस बन जाते हैं, बी इट अ वुमेन्स बिल्कुल। लॉयर, बी इट अ मैन, यू हैव टू डिफेंड। आप भी राइट। हाँ जी कोई बात नहीं, पैसे की जना नहीं, आप केसेस डालो। जब आप हाँ हाँ। उस दलदल में फंस जाते हो तो हाँ वहां हाँ। से निकलना मुश्किल होता है। लाइक आई से कि कितने मर्जी केसेस डाल दो, द ओनली पर्सन हैप्पी विल बी हम्म। योर लॉयर, गोइंग लाफिंग राइट। टू द बैंक। I या। always tell this to my client, always. हम्म। Second thing that I tell me, I do a counseling. I never take up a matter unless and until I talk to the parties. And हम्म। believe you me, I've sent back people कि no, this is not the right this thing. आप ऐसे हम्म। ऐसे करते हैं. In some of the cases, there has been a successful marriage thereafter. So now when you're coming there, if it's a father or a husband who comes हम्म। to me, my advice to them is very simple. कि आपकी बीवी खराब हो सकती है, आपको अपनी बीवी के साथ बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं, आपका बच्चा आपको, डू हम्म। नॉट डिनाई हिम मेंटेनेंस। चाहे राइट। कोर्ट ऑर्डर करे न करे, प्लीज पे समथिंग फॉर दी अपकीप ऑफ द दैट्स योर चाइल्ड, उसकी रिस्पांसिबिलिटी, फीस। यस। नहीं, हाँ। उसकी कॉन्ट्रेरी भी एडवाइस लेके आते हैं ना लोग, कि ओके। आपको नहीं देनी है, अगर कोई मेंटेनेंस होगी फिर आप हाई कोर्ट चलो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट चलो ना। हमें इतने कोर्ट हॉपिंग नहीं करनी है अनलेस एंड अनटिल कोई ड्रास्टिक से ऑर्डर आए जो मेरे राइट्स को इन्फ्रिंज करता। सो गॉट इट। अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, लिटिगेशन हैज टू बी द गोल्ड माइन। योर एम शुड बी गेटिंग टू मीट योर चाइल्ड फर्स्ट, then assuring your child. It is not about getting to child. See, your child is not a tug of war or a हम्म। possession that you and your wife fighting. हम्म। There are various judgments which say that instead of one unhappy home,
there should be two happy homes for the child. The person who does not have the custody हम्म। should be allowed to speak to the child, and both of you should be mindful that do not poison the child's mind against each other. उसको एंड बोलो हाउ बेटे डज, कोई बात नहीं। बिल्कुल ये भी मेरा एक क्वेश्चन था, अब क्योंकि आपने पॉइंट रेस करा है, तो हाउ डज हाँ, पेरेंट एलियनेशन या फिर पॉइजन जो आप कह रहे हैं, ये कैसे हम कोर्ट में बता सकते हैं कि से वाइफ बोल सकती है हस्बैंड के लिए, हस्बैंड बोल सकते हैं वाइफ के लिए कि बच्चे के माइंड को पॉल्यूट करा जा रहा है फॉर द अदर सर, पेरेंट, ये कोर्ट में कैसे स्थापित होगा, the कोर्ट कैसे the करेगा? the जज आर वेरी वाइज। ठीक है, मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि वहां पे आई फोन की भाई ये हो सकता है इसमें, मैंने कहा सर इनकी काउंसलिंग करो, या मैं कोर्ट को बोल देती हूँ प्लीज टॉक टू द चाइल्ड, सो द जज दे नो, जितना मर्जी भी ट्यूटर्ड करके लाओ। मेरे केस में आई थिंक दिस वाज ड्यूरिंग कोविड, पापा के पास नहीं जाना, पापा गंदे हैं, पापा ये करते हैं, जजेस ठीक है बेटे को ले आओ। वहां से गप्पे हम्म। मारी, द मोमेंट द चाइल्ड सॉ द फादर, वो पापा की गोद में चला गया, फिर जज साहब ने बात की। तो हम्म। इसमें ना आप ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। इवन इन द ओपन कोर्ट आई टेल द अदर साइड कि फाइट हम्म। ऑन द मेरिट्स, बट डू नॉट, एंड आई रिपीट, डू नॉट पॉइजन द माइंड, टू टेल द चाइल्ड कोई बात नहीं बेटा, हम मिलते रहेंगे, एंड एट द सेम टाइम डोंट पैम्पर द चाइल्ड टू विन द चाइल्ड ओवर। एक हम्म। गलती लोग करते हैं कि आप बच्चे की सारी जिद मान, तो यहाँ पे ये वाली चीज एक क्लैरिटी नहीं चाहिए। चाहे अगर आपका स्पाउस है उसको ये आप बता सकते हो कि हम लोग लड़ लेंगे, हाँ हाँ। ठीक है, डोंट फॉरगिव मी, आई वोंट फॉरगिव यू, बट वेयर इट कम्स टू अ चाइल्ड, एक जिंदगी का सवाल है। तो बिल्कुल। अगर वो कर सके तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। अदरवाइज मेरिट पे आपको आजकल फादर्स के फेवर में हो रहे हैं ऑर्डर्स कि हम्म। उनको पीटीएम में, जैसे आपका बच्चा स्कूल जाता है, आप उसकी फीस दे रहे हो, तो पीटीएम में जाने का भी मिल जाता है ऑर्डर। आई हैव हम्म। गॉट इट फ्रॉम साकेत कोर्ट्स, ठीक है। फिर आप फोन कॉल्स का भी कर सकते हो दैट आई एम अ फादर, आई वांट टू सुपरवाइज ऑन हिज होमवर्क, आई वांट टू बी योर डे टू डे एक्टिवली पार्टिसिपेट। देयर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स व्हिच आर नाउ कमिंग एज अ बैलेंस कि फादर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द चाइल्ड्स अपब्रिंग। डेवलपमेंट, ओके। तो एंड वो हाउ सारी इम्पोर्टेंट इज द परसेप्शन ऑफ द कोर्ट कि ऑन द स्पेशली ऑन द कॉन्डक्ट ऑफ बोथ द पेरेंट्स, क्योंकि कोर्ट एक एक ओपिनियन है कि एक परसेप्शन भी देखता है वो कि हस्बैंड It और is वाइफ का not कॉन्डक्ट the कैसा है। husbands and wives this thing. The perception is vis-a-vis the child only. What is best for the child? आप जितने मर्जी अच्छे हो खराब हो, लेकिन आपके बच्चे के लिए जो बेस्ट है कोर्ट वो लेगी। वो मदर ओके। सेंट्रिक भी होता था, लेकिन अभी मैंने एक जजमेंट पढ़ा, वो मदर ने कुछ वहां पे करा, जज सेज नो, आई एम गिविंग द कस्टडी टू द फादर। पहले हम कहते थे कस्टडी नहीं मिलती, मैंने जब केसेस डालते हो ऐसे ठीक है नहीं मिलेगी, बट यू विल गेट समर ब्रेक्स, यू विल गेट टॉकिंग टू द चाइल्ड, एंड यू कैन ऑलवेज गेट इनटू, जब तक केस चल रहा है उसको आप एक्सपैंड करते चलते जाओ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, ओके। डोंट लूज योर कूल, बिकॉज सी वंस यू आर अ क्लाइंट, आप बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनोगे दूसरी साइड से, उसका लॉयर भी आपको इंस्टिगेट करेगा, वो भी राइट। इंस्टिगेट करेगी। बॉटम लाइन इज डू नॉट रिएक्ट हाँ हाँ। एंड डू नॉट फाइट फॉर द डेट्स, बिकॉज थोड़ी मोड़ी तो जज कर देगा, पर हम्म। उनकी डायरी अगर आप देखो वो फुल है, वो भी मैंने, आप राइट। उनकी तरफ देखो कि जिस तरफ वो डाइस के बैठे हैं वहां पे कितनी चीजों का, एंड दिस जज इन गुड़गांव, ही इज वेरी रूड, वो मुझे भी डांट देता है और मैं डांट खा लेती हूँ, क्योंकि मैं वहां गई हूँ, कहता आप फिर आ गया, हमारी फाइल इतनी मोटी हो गई है, तो मुझे तो जाना ही है ना क्लाइंट को रिलीफ दिलवाने के लिए, अगर उसके बदले में मुझे डांट देगा कोई बात नहीं, बट वो सुन के ऑर्डर बड़ा फेयर देता है। लास्ट जून हम उनके यहाँ सुबह 10 बजे से जाके शाम के 4 बजे तक बैठे रहते हैं, देयर इज नोवेयर एल्स टू गो, यू आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली, उनकी कैंटीन भी आप देख लो, सो वी वेटेड एंड ही पास्ड अ वेरी फेयर ऑर्डर। ओके, विच इज गुड। अच्छा, इवेंचुअली अगर some फेयर days you will ऑर्डर आए get a तो good order, okay. just a minute, हाँ। some days you will get a very good order, some days हम्म। it seems that he's against you, but do not lose your faith in your lawyer or your trust in the judge. बट अगेन इफ देर इज अ डिले एंड बहुत जेन्युइन रीजन है फ्रॉम द जज और द कोर्ट साइड, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं, बट इफ देर इज अ डिले देन द फादर इज रिस्किंग बीइंग कॉल्ड एन अंकल और द चाइल्ड फॉरगेटिंग द फादर। मदर How को much is रिस्क the नहीं है। delay? How much is the delay आई एम टॉकिंग that the जनरल, child will forget? नॉट इन No, माय केस। ओके। no, से वन I'm just telling मंथ। you, जब भी अगर फादर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर आपके एक डिवोर्स केस डला, ठीक है, वहां पे आप एक तुरंत एप्लीकेशन लगाओगे,
तो अगर इट इज द मदर हु हैज फाइल्ड द केस, एंड आई एम गिविंग यू दैट एग्जाम्पल, ठीक है, moment you get a service done, you will file an application that I want to ओके। meet the child. Chances are they will also file an application for the maintenance of the child. So appear in the court. Delay तब होते हैं जब हम बहुत चीजें contest करते हैं. मेरा हाँ ये हाँ। मानना है, और जजेस भी यही कोशिश करते हैं, आप कितना कमा रहे हो, व्हाट इज योर कैरी ऑन, व्हाट आर योर लाइबिलिटीज, ही डिसाइड्स एन अमाउंट. एटलीस्ट वो साकेत वाले जज ने, आई वाज हियर, आई डिड नॉट इवन रिसीव द कॉपी, बट ही डिसाइडेड, बट वी वर ओके विद इट. क्यों, हमें देना तो है ही है. मेरिट पे आगे पीछे हो जाएगा अगर हम बहस करेंगे तो, ठीक है ना. वो दे दिया, फिर उसके बाद मेरी एप्लीकेशन आई, जज ने वो भी ऑर्डर दे दिया, तो आपकी 2 डेट्स बच गई इससे. वो पहले रिप्लाई देगा, फिर आर्ग्यूमेंट होगा, फिर कुछ होगा. तो कई बार तो वी ट्राई टू कट शॉर्ट दीज डेट्स, क्योंकि बच्चा ओके। अंकल नहीं बोलेगा. अगर हम उसको स्ट्रेच नहीं करेंगे तो नहीं बोलेगा. डेट्स आपकी मिलती है 2-3 महीने की मिलती है इनिशियली, फिर depending upon the judge's time. So ओके। initially when you go, you just say that I need to communicate with the child, और ओके। ये चीजें, तो वो सारी चीजें फिर उसमें हो जाती. मैम, व्हाट इज वन एडवाइस दैट यू विल, और द डायरेक्शन दैट यू विल गिव टू ए फादर जिनका बजट लिमिटेड है, जिनकी अर्निंग बहुत अच्छी नहीं है, और वो लंबी बैटल या लॉयर अच्छा अफोर्ड नहीं कर सकते, बट बच्चे की विजिटेशन या कस्टडी चाहिए, सो व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू गेट द चाइल्ड विजिटेशन? There are lawyers, you will get youngsters, sincere youngsters भी मिल जाएंगे. Some lawyers will do at a nominal cost also. ऐसी कोई बात नहीं, हो व्हाट इज जाता द है. फास्टेस्ट वे, मींस इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन क्या करना चाहिए, इफ यू कैन गाइड अस ऑन दैट? Which application? Now I'll tell you. आप चाइल्ड आपने एक मिनट, विजिटेशन। चाइल्ड विजिटेशन का आप एग्जाम्पल क्या ले रहे हो, कि आपने कस्टडी का डाला केस, वहां से हम बताऊं मैं, या कहाँ से बताऊं? नहीं, जैसे सपोज आप ऐसे सोचिए कि इफ समवन इज स्टार्टिंग ऑन द डे वन, हस्बैंड वाइफ में इश्यू है, एंड से वाइफ ने डिवोर्स केस एक फाइल करा चीज, सॉरी आई जस्ट कट यू शॉर्ट. आपके और आपकी पत्नी में प्रॉब्लम, ठीक है, बोथ ऑफ यू डोंट वांट टू स्टे टुगेदर. देयर इज समथिंग नोन एज प्री लिटिगेशन मीडिएशन. है। ओके। ठीक है, प्लीज रीड अबाउट इट, वहां पे जाइए. वहां पे अगर आपके इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, तो आपको जो सेटलमेंट ऑर्डर आएगा, वो इट विल बी एट पार एज इफ अ कोर्ट हैज पास्ड अ डिक्री. So it will save you the agony of going to the court. I always advise my clients to go for अंडरस्टूड। pre-litigation mediation. ठीक है, दिस इज द अगर आपका, फास्टेस्ट। this is the fastest. अभी I am filing a case for partition, suit for partition. My client is in the US. She has she's got anxiety about the monetary aspect. So I have given her an assurance that if the matter is settled, I will only take the matter for mediation. And if it is settled there, I said there and then we will give it to this thing, because ये interest नहीं है मुझे कि लंबा खींचे. मेरे पास सर एक मैट्रिमोनियल केस था, उसमें आई वाज फॉर द हस्बैंड. फर्स्ट डेट पे आई टोल्ड द जज, and it is mandatory to be sending the matter for counseling, right? I said, please send it for a counselor. We want a settlement. So he gave us a senior most counselor. वहां पे 4-5 डेट्स लगी, मैटर खत्म हो गया, और आपके गुड लॉयर को सिर्फ अपीयरेंस फीस मिली, बाकी कुछ नहीं मिला. और अगर मैं उसमें रिप्लाई फाइल करके उसको लंबा खींच के चलती तो ज्यादा जाता. पर अगर आप इसको वहां पे जाके थोड़ा सा ईगो कम कर लो, थोड़ा सा नेगोशिएशन पे आ जाओ, अगर ये कर लो, और उसका लॉयर ऐसा नहीं हुआ कि जिसको लंबा केस चल रहा है, या वो बंदी भी है कि भाई शी इज वर्किंग, शी डजंट वांट टू, तो सेटल हो जाए. ओके। आई डोंट हैव केसेस व्हिच आर ओल्ड. मेरे पास नहीं है. कल मेरे से पूछ रहे थे, मेरे पास एक 4 साल के हों, 4 साल पुरानी होंगी, पर मैं अभी देखूंगी जाके अपने ऑफिस में. मुझे नहीं लगता मेरे पास पुरानी है, ओके। बिकॉज और मैम, एम, या प्लीज हाई कोर्ट भी कंटिन्यू। जाके काउंसलिंग करता है. एक मेरा था मैट्रिमोनियल का, तो वो द वाइफ हैड अपील्ड अगेंस्ट द मेंटेनेंस ऑर्डर्स पास्ड इन द हाई कोर्ट. दे सेंट to the mediation in the High Court. उससे पहले 2 mediation हो गई. That also failed. Then the judge called the parties to the chamber. The expectancy of the wife was that I needed crores and he was a government. So judge says मैं नहीं इतने दे सकता, कहाँ से दूंगा. तो कर करा के वो पार्टीज को समझा के, और हो गया. तो किस स्टेज में आपका सेटलमेंट हो जाए, नेवर गो. दैट्स राइट, या। बट मैम, अगर ऑलवेज. किसी को हाँ. विजिटेशन ऑर्डर मिल जाता है, किसी फादर हम्म. को,
और वाइफ कोऑपरेट नहीं कर रही और वो ऑनर नहीं कर रही और पुलिस भी हेल्प नहीं कर रही, बिकॉज मेरे पास ऐसी यू क्वेरीज कांट आई गो हैं। टू द पुलिस फॉर दैट ऑर्डर। अगर जैसे आपको ऑर्डर मिला है, ठीक है, you have got evidence that she is not, and always use your WhatsApp chats. I recently there was like you're saying order. She says the child will not come because child is under. So he says it's all right. I'll still meet the child and take her to the doctor if necessary and the father. Then she says talk to the lawyer. Ask your lawyer to talk to my lawyer. So then I advise my clients, please tell her that it is not between the lawyers, it is between the us. I'm coming to take the child. Now an evidence chain was created. Then she says child is not wanted. So he says, I will still talk to this child. And sure enough, he got the child. This happened for 2 years. So we got this to the notice of the court without moving an application. And the judge then asked her. She says he took the child. बच्चे को कुछ खरीदने थे कपड़े, तो 1 किलोमीटर की रेडियस की जगह 3 किलोमीटर हो गया. She said, I was worried. He says, your daughter has a phone. He just said that. Then she was quiet. So then he increased the radius for the father. See, एकदम से हड़बड़ाओ मत, एकदम से रिएक्शन मत दो. इसको चलना अपने पेस पे है. उस पेस को जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, you will get a relief, you will be more happy with your child, and the litigation won't be traumatic because आपके वर्क को भी इफेक्ट करती है, आपके माइंडसेट को भी इफेक्ट करती है. पीपल कांट कंटिन्यू विद द जॉब्स, इतने वो हो जाते हैं. वो सब चीजें अवॉइड करो. श्योर. आपके एक्सपीरियंस में हैव यू एवर विटनेस्ड हस्बैंड और वाइफ साइड मिस यूजिंग द लॉ? उनको पता है लॉ में एक लूप होल है या स्ट्रेटेजी में, और वो मिस यूज कर रहे हैं और जज ने रिजेक्ट करा या नहीं करा, कुछ ऐसा है आपके इंस्टेंसेस? सर मैं सोचती हूँ आई एम द बेस्ट लॉयर, नंबर 1. नंबर 2, अगर आप मिसयूज कर रहे हो, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट कोर्ट टू गो. मिसयूज आप नहीं कर सकते. अगर कोई ऑर्डर है उसको आप फॉलो नहीं करोगे, आई हैव माई राइट्स. ठीक है, अगर आप बच्चा नहीं दोगे, आई स्टिल हैव माई राइट्स. तो जज डिटेक्ट ना करे ना करे, देर इज ऑलवेज योर राइट टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द जज, and then if he is not acting on it, then you have a right to go to the next court. There are clients, see, in list litigation can be prolonged also. For instance, I have like I go to NCR also, and Ghaziabad and UP courts are not very litigation friendly. I hope I don't commit a thing, but I'm just talking my experience. Now the lawyers there are moving applications after applications. There's a petition for void marriage that I've. Now the lawyer first said मेरे को translated copy. I understood translated copy. फिर उसके बाद वो, then I moved an application. This is beyond the stipulated. The judge took 2 months to pass the order. Then that day also I was saying something. She said, नहीं मैं order करूँगा. ऐसे नहीं मैम, आपको जो order करना है करो. I don't want another thing. Then he moved an application. There is no cause of action. What you're saying. So I have now, I'm going to move an application that judgment on this thing. Let these be preliminary issues and let it be decided on these things. तो वो आपको एप्लीकेशन है, उसका रिप्लाई, उसका ये वो तो उसको यूज करेंगे ही करेंगे, बट चाइल्ड कस्टडी में नहीं कर सकते. चाइल्ड कस्टडी के अलावा आपके डिवोर्स में या उसमें कर सकते हैं, बट कोर्ट्स आर विजिलेंट. द यंग जजेस एंड द जजेस आर स्मार्ट. ऐसा नहीं है. मैंने ये भी देखा नोएडा में. नाउ द जजेस नो देयर लॉ एंड दे आर, बिकॉज हर जगह से अच्छे कॉलेजेस से आ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं. वो पहले वाली बात नहीं. Okay. So talking about again the court premises कि कैसे होता है वहाँ पे. So husband और wife. So do we have an option to talk to the judge directly या सिर्फ lawyer से ही जज बात करते हैं? नहीं, आप चेंबर में, आप चेंबर की बात कर रहे हो. आप एक सेकंड, यार 2 थिंग्स. आपके कोर्ट में इन पर्सन बात करने की बात कर रहे हो? नहीं, you're talking to the judges for what? Some point. Say lawyer. If you have a lawyer, no, it has to be through him. अगर आप भी बोलोगे, लॉयर भी बोलेगा, that is not taken well and you will get fired. आप अपने लॉयर से बात करते हैं या बात करते. आपका अगर इनिशियली आप जाते हो तो जज बात करते हैं. जैसे मैं अभी आपको अपने केस के ही बता रही थी, तो हमें मीडिएशन में भेजा गया. मीडिएशन में हमारी बात नहीं बनी. The husband was not offering much to the wife, time for the husband. So it couldn't facilitate. He said, I'll pay everything to my daughter, but not to the wife. He's without a job also. So then we came to the court. Then there was a 125 petition that is for maintenance.
द जज स्पोक टू देम। आई टोल्ड हिम, ऐसे मैं करूंगी कोशिश कि जज आपसे बात कर ले, अगर आपका सेटलमेंट होता है, नथिंग लाइक इट। फिर ये उसमें इशू सिर्फ बेटी का ला रहा था। नाउ द वाइफ्स फैमिली, उनको एक डिवोर्स में करोड़ मिल गया है, तो दूसरे में भी दे वांट समथिंग टू दैट। लॉयर्स ने भी, उसके लॉयर ने भी अश्योरेंस दे रखा है आपको पैसा मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ फैक्ट। तो उसका नहीं हुआ। दो तीन बारी जज ने दोनों पार्टी से बात। तो अगर उसको लगता है जज को, देयर इज नथिंग टू स्टॉप देम, बट अगर आपको कुछ अपनी पॉइंट्स रखने हैं, please brief your lawyer about it. And if they feel that it will have some impact, then they'll use it. So don't lose heart, don't be upset if he's not using your point, because we know how much information or how much this thing to get put across to the judge to get his attention. Okay, got it. So Then thus talking the about the trust has parent, to be on the lawyer. Sorry, so I was just taking the another question. You can complete, man, if you want to. नहीं हो गया, आप बताइए। So talking about the parental rights for both father and mother. So जैसे हम्म, मेरे केस में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, सो मेरी वाइफ ने कोई केस फाइल नहीं करा मेरे पे, कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, कोई चाइल्ड अब्यूज नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने केस फाइल करे एंड आई हैव सम रीजंस, राइट? सो ना अलॉन्ग विद दैट मैंने चाइल्ड विजिटेशन एप्लीकेशन आईएबी फाइल करा है। तो जज, और उसको 6 महीने हो गए मेरे को अपने बच्चे से मिले हुए। नाउ जज हैज आस्क्ड फॉर मोर टाइम, और मोर टाइम फॉर द वाइफ साइड टू रिप्लाई टू माय चाइल्ड विजिटेशन एप्लीकेशन। नाउ द पॉइंट इज, उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं करा अभी तक, ठीक है? तो बट अगर जज आगे होके पूछेंगे तो ऑब्वियसली देयर आर गुड चांसेस कि वो कुछ डालेंगे उसके ऊपर, फिर एलिगेशन होंगी, चाहे प्रूफ है कि नहीं वो how सेकेंडरी old है। is your child? 3.5 years। सो माई क्वेश्चन इज कि माई वाइफ, अगर कुछ रिफ्ट होता है हस्बैंड वाइफ में, शी गेट्स ऑटोमेटेड पेरेंटल राइट्स, बट मेरा राइट हैज बिन डिनाइड बाय नोबडी, भाई, नॉट द कोर्ट, नॉट द पुलिस, बट ऑटोमेटिकली मैं उसे नहीं मिल पा रहा हूँ, और भाई उसे मिलने बच्चा के लिए आप मेरे को। लेके, नहीं नहीं, बच्चे को आप नहीं लेके गई हो, बच्चा अपने घर में ही रहा है, ठीक है? अब वहां से आपने अगर पहले कोशिश की होती, जैसे प्री लिटिगेशन या वैसे जाके बात करके कि देखो हम सेपरेशन में रहेंगे लेकिन मैं बच्चे से मिलूंगा, ऐसी अगर कोई आपको गाइड कर देता, तो शायद वो वहां से शुरू हो जाता। ठीक है? अब आप कोर्ट में गए हो, नाउ वी आर बाउंड बाय द कोर्ट प्रोसीजर। अब उसकी सर्विस हो गई है। अब आप उसमें एक एप्लीकेशन लगाइए। अगर आपने एक एप्लीकेशन विजिटेशन की तो लगा रखी है फिल्म में, ठीक है, उसके बाद भी आप लगाइए कि ठीक है, टिल द टाइम दीज एप्लीकेशंस आर डिस्पोज, आई मे बी अलाउड टू टॉक टू माई चाइल्ड, हैव अ वीडियो कॉल ओवर द फोन, बिकॉज हम्म, आई एम मिसिंग माई चाइल्ड एज अ पेरेंट। वो सारी चीजें करके आप एक बार जज की अटेंशन दीजिए, और हम्म, वहां पे फिर उसके बाद वो कोर्ट उसको बोलेगी हाँ भाई बताओ। कई बार ये एप्लीकेशंस विदाउट वो हो जाती है, और आप अपनी बेटी को मेंटेनेंस दे रहे हो या नहीं, ये एक फैक्टर बहुत जरूरी है। तो यू कैन टेल द कोर्ट कि आई एम पेइंग एक्स अमाउंट इन हम्म, द फॉर द डॉटर, सो आई मे हम्म, ऑल्सो बी अलाउड टू मीट, बिकॉज दीज टू थिंग्स गो हैंड इन हैंड। सो दिस इज अंडरस्टूड। द वे आउट। हाँ, डोंट नॉट थिंक कि भाई 6 महीने हो जाएंगे, उससे कम में हो जाएगा। हाँ, अंडरस्टूड, बस ये ठीक है। है कि आप बोलो, अपनी वाइफ को मैसेज कर दो कि आई वुड लाइक टू सेंड दिस थिंग, प्लीज गिव योर, एंड उसके बाद आप कोर्ट के ये सबमिशंस करो कि इफ शी हैज नो प्रॉब्लम आई कैन मीट द चाइल्ड। अब वो अगर आपसे कंफर्टेबल नहीं है कि घर आके मिलो, फिर कोर्ट प्रेमिसेस में, नहीं तो मॉल में इन द प्रेजेंस ऑफ मदर ऑल। ओके। फिर वो जब आपको वो स्टेप वन मिलेगा, फिर आपको हम्म। उसके बाद बाकी सारे रिलीफ मिलते जाए, और जज वो और आपकी एप्लीकेशन साइड कर देगा। या और मैम एज क्राइटेरिया भी होता है बच्चे का, कि इस एज के बाद फादर को राइट मिलते हैं, या इस एज के नीचे फादर को Now, कस्टडी। now you come back to what I said again. It is only and only who, where the child should be, the interest of the child, the welfare of the child is thing. Mother and father का अब blur हो गया है। पहले होता था ना कि 5 साल तक माँ के पास फिर फादर के पास, ऐसा कुछ हाँ नहीं है। हाँ, ये इज अ वेरी What is कॉमन the कंसेप्ट। best? हाँ हाँ, मुझे पता है। Whatever is in the best interest of the child would be। ओके। तो हाँ, तो इस वजह से आपका इसमें प्रोएक्टिव रोल जो रहेगा वो आपके व्हाट्सएप चैट्स रहेंगे। बच्चे से उसको बोलो मेरे को बात करवा दो, ठीक है, वी कैन एमिकेबली वो तो बात करा दो, वीडियो कॉल करा दो, जब तक एप्लीकेशन हो गई। थोड़ा सा वट एवर इज योर रीजन, आई एम नॉट आस्किंग यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट थोड़ा सा उसको सॉफ्ट पेडल करो फॉर द सेक ऑफ द केस। डू नॉट, एंड नाउ योर योर लॉयर्स रोल कम, कि हमें कुछ कंसीड नहीं करना है, अपना केस बिगाड़ना नहीं है,
वी हैव टू ओनली फोकस ऑन द चाइल्ड, दैट्स हम्म। इट। उससे जाके और जनरली ठीक है। इफ यू हैव टू गिव एन एडवाइस टू से हस्बैंड और वाइफ कि अपना केस जैसे आप कह रहे हैं बिगाड़ना नहीं है, सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इन द कोर्ट, क्योंकि पिटीशन तो लॉयर और बनाते हैं मैं बट तो वहाँ रोज कॉन्टेक्ट नहीं एडवाइस, पाते। ना ना ना, आप जहां पहुंच जाते हो ना, मेरा एक क्लाइंट अभी आईसीयू में है, कह रहे मैम मैं जाऊंगा गुड़गांव। ऐसे पहले ठीक हो जाओ, यू आर नॉट डूइंग। ही टुक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, तभी मैं, आई एम ऑल्सो लर्निंग विद ईच केस, राइट। हम्म। सो जिस तरह के केसेस आते हैं उस तरह से हो, तो आई टोल्ड हिम, आई इनफैक्ट मेट हिज फादर आल्सो, ही सेड डोंट इन्वॉल्व माय फादर, आई सेड नो, इट्स इम्पोर्टेंट। ही लव्स हिज वाइफ, he loves the child, the wife loves him, the child loves him. It is the mother which is the biggest this thing. She is ensuring that they don't get together. तो वो बंदे ने स्ट्रेस लेके हॉस्पिटलाइज हो गया, वो कोर्ट आ गया था, कहता है मैं क्रॉस करवाऊंगा। मैं कहा यू आर नॉट लुकिंग गुड इनफ, प्लीज डोंट डू इट। ही स्टार्टेड विद अ क्रॉस, तो जज कॉल्स में, मैडम बता रहा हूँ आपकी क्लाइंट की तो तबीयत ना लग रही। मैं कहा सर मैंने तो बोला है, उसकी वाइफ भी कह रही है ना कराओ क्रॉस, ठीक है। और ये बदमाश है, करवा रहे हैं, और उसने कुछ गलती की क्रॉस में, उसकी वाइफ ने करेक्ट कर दिया, कहती नहीं मैं सच के साथ हूँ, इतना उनका वो है। फिर जज साहब ने रोकी प्रोसीडिंग्स, और उसके 2-3 दिन बाद पता लगा उसका हार्ट नहीं काम कर रहा, उसको ये प्रॉब्लम है, उसको ये problem हम्म। है। तो ये चीजें हैं। तो मैम जनरली एक परसेप्शन है फ्रॉम फादर साइड या अदरवाइज कि थोड़ा वाइफ साइड में प्रेस करते हैं, दे यूज द लॉ अगेंस्ट द हस्बैंड्स। आपके केस में ऐसा भी हुआ है कि चाइल्ड हस्बैंड कस्टडी वाइफ कैसे? को, हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपके केस में आपके कुछ आपने कोई विटनेस करा ऐसा कि जिसमें हस्बैंड वाइफ को तंग कर रहे हैं और दे आर यूजिंग द लॉ या अदरवाइज अगेंस्ट द देखो, वाइफ? अगर मैं हस्बैंड की लॉयर हूँ, मैं नहीं करने, आई एम वेरी फेयर। आप मेरे क्लाइंट है, अच्छी बात है, बट देयर सर्टेन डूज एंड डोंट्स व्हिच यू हैव टू फॉलो। ना नेगेटिव लो ना दो। अगर मैं वाइफ लेकिन की लॉयर हूँ, ऑनेस्टली इन द प्रिंसिपल आपको कभी लगा कि दिस इज गोइंग अगेंस्ट यू और नाउ योर आई एम क्लाइंट? टेलिंग यू इन माई केस, और अगर मैं वाइफ की लॉयर हूँ, तो हिम्मत नहीं कि मेरी क्लाइंट को कोई तंग कर। अगर आपके काउंसिल पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर, इट इज नॉट अ वॉर, ये बैटल फील्ड नहीं है कोर्ट, आप हाँ हाँ। समझो। आप यहाँ पे जंग पे नहीं आए हो, कुश्ती पे नहीं आए हो, आप अपने अपनी लीगल प्रॉब्लम लेके आए हो। आप दोनों वर्किंग होंगे, आपके काम पे भी असर पड़ेगा। तो मैं तो बोलूंगी भाई, पहले तो अगर दिल्ली का कोर्ट है, वर्चुअल पे आ जाओ, ठीक है। या तुम वहां रहो या मैं वहां रहूं, और उस पे हम्म। कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे हम्म। फैक्ट्स, अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी हुई है, अब आपने ढंग का लॉयर किया है, उसने आपकी सारी पॉइंट्स उसमें डाले हैं, आपकी बातें सुन रहा है, और लॉयर को भी ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए, उनकी भी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है। तो या अगर ये सारी चीजें आपने ठीक की हुई हैं, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन, अपने शांति से खड़े होते हैं, केस सुनते चले जाते हैं। सीन तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं सीन। इस चीज पे मैं नहीं करती, क्योंकि क्यों करना है सीन। हाँ, मेरा एक क्लाइंट वो अपनी बीवी को करता था, मैं कहा आई एम नॉट गोइंग टू काम, आप ऐसे नहीं करना, पर ठीक है, एक आध को आप समझा सकते। और ठीक है जितने मैम। भी हाई एजुकेटेड है ना, उन सबको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा एक था, वो मेरठ में कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वो वाइफ साइड नहीं मान रहे थे, वहां पे कह रहे पुलिस, जैसे आप कह रहे थे पुलिस जाएंगे, पुलिस के नॉट इंटरफियर इन दीज काइंड ऑफ मैटर्स, फैमिली रिलेटेड मैटर्स हैं। तो वो सारा कर करा के देनी से मैम आई एम गोइंग टू द ड्राफ्टिंग यू टू आगे। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए दैट आई नीड अ क्लाइंट्स ड्राफ्टिंग। सो देन दे गो ओवरबोर्ड, पर उनको प्रोसीजर उतना ही फॉलो कर। अगर उनको ठीक है। लगता है लॉयर, आप लॉयर भी चेंज कर लोगे, तो भी यू हैव टू अंडरगो दैट, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, पर दैट्स इट। ठीक है सो ठीक है आई मैम। विश। हाँ, Yeah. So in as a last question, so since I'm getting so many messages फादर से और बहुत ज़्यादा परेशान है और सबके रीजंस अलग अलग हैं, so is there any advice or counsel from your side for a father who is losing hope, especially with respect to he the can get child in or touch with otherwise? me, I will counsel him, I can counsel those people. If you can share my email ID or WhatsApp or whatever, if they need this thing, because see, it is a one to one, each case varies, आपका अलग है, दूसरे का अलग होगा। तो एक जनरल, हाँ भाई सब ठीक हो जाएगा, सब चंगा हो जाएगा, नहीं, गलत बात है। मैं तो ये बोलती भी नहीं हूँ, मैं पहले बता देती हूँ आपके केस में क्या क्या पिटफॉल्स हैं। क्योंकि अगर मैंने बोल दिया, सी व्हेन यू कम टू मी, यू डोंट नो मी, सो आई से हाँ हो जाएगा, जज को जानते, ये करते वो करते, वट एवर एक्स वाई जेड एश्योरेंस आई गिव यू, और फिर नहीं होता है, यू विल हेट मी। बट अगर मैं बोलूँ नहीं, आपका ये चांसेस है, ऐसा है, यू गॉट नो ऑप्शन, चलेंगे,
then it's a relaxed kind of a litigation that takes place. So for हम्म, each person, it varies. They have to get the advice based on whatever the cases are. अगर वो delay, कई बारी lawyer की कोई गलती नहीं है. I have returned briefs because the lawyer is doing a good job. You हम्म, are getting restless. So there is हम्म, no point in telling him that you please change your law. No. understood. Maybe, Yeah. litigation has a say. So advice has to be on a one-to-one basis. कि भाई इस तरह से चलो. तो उनका कुछ भी हो, they are can feel free to contact me. Definitely, I'll connect them with you directly so that they can be helped. And ma'am, thank you so हाँ, much for giving us time and guidance. I Or these hope were I was of certainly some helpful. help. I hope Yes, I yes, was of your some help. answers All were the best detailed for and I your could see. case. Thank All you the so much, best. ma'am. And you are going to Gurgaon, na? I live in Gurgaon. I'm a Delhi height, but I'm living in Gurgaon for the last 10 years. Yeah. So your matter is in Gurgaon, where the child is based, right? Yes. Yes. तो हो सकता है धक्के खाते हुए हम मिल जाए गुड़गांव कोर्ट में. डेफिनेटली मैम, बिल्कुल मेरे को तो अच्छा लगेगा आपसे मिलके और हाँ, आपसे वहां पे मिलने वो का मौका मिलेगा। सेकंड, श्योर, सेकंड फ्लोर पे है वो सारा कोर्ट्स वहां पे. हाँ, मैं गया डीवी था, के मैं भी 4 घंटे वहाँ उसको, बिताया। हाँ हाँ, डीवी के भी कोर्ट वहीं पे, उसका भी वहीं पे, तो वो तीन चार तो लगे ही रहते हैं. तो वहां हाँ, तो जाना होता ही रहता है. तो बिल्कुल बिल्कुल, हुआ तो डेफिनेटली आई मैम। एम डेफिनेटली यू. एंड लवली ठीक है, टॉकिंग टू यू. आई होप आई वाज सेम ऑफ है सम मैम। हेल्प. यस, थैंक यू. थैंक यू सो मच।